everyone, and welcome to Thorough Newspaper Analysis, which is brought to you by LawSeco. Let's see what articles we will be discussing today from the Indian Express and the Hindu. There are a lot of articles basically. आज बहुत सारे articles हैं जिनको हम discuss करेंगे. And let's see that what are they. The first one is Stop the Dismantling of Environment Rules. So basically this has been written by Sonia Gandhi, and as we know that she is the leader of the Congress party. She is the president of Indian National Congress और बहुत अच्छे points उन्होंने यहाँ पे raise किए हैं regarding जो हमारा अभी draft environmental impact assessment rules जो आए हैं 2020 के, so वो किस तरीके से harm कर सकते हैं हमारे environment को और किस तरीके से ये rules की जो drafting है वो appropriate नहीं है, ये highlight किया गया है. Second, more than a vaccine, it is about vaccination. This article is actually ये बात करता है कि अभी जैसे हम COVID-19 के टाइम में प्रिपेयर कर रहे हैं कि विद इन दिस ईयर और मैक्सिमम बाय द नेक्स्ट ईयर हमें वैक्सीन मिल जाएंगी सो दैट वी कैन एक्चुअली फाइट दिस वायरस ऑफ COVID-19. लेकिन ये यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि जितनी जरूरी वैक्सीन बनाना है उतना ही जरूरी ये भी है कि हम उन वैक्सीन को सही तरीके से लोगों तक, किन लोगों तक, जिन लोगों तक इसको पहुंचाना है, जिनकी इसको जरूरत है, सो उन लोगों तक हम किस तरह इस वैक्सीन को डिसेमिनेट कर पाएंगे, प्रोपोगेट कर पाएंगे, ये स्ट्रक्चर तैयार होना और इसके लिए भी हमारा जो अथॉरिटीज हैं या फिर हमारी जो सेटअप है वो रेडी रहना चाहिए. थर्ड, a self-reliant foreign policy. Basically this says कि क्योंकि अभी से इंडिया self reliance की बात कर रहे हैं और हम हर प्लान में बात कर रहे हैं that we should be in some or the other way आत्मनिर्भर और self reliant, ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उसमें भी इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि हम सेल्फ रिलायंस को गेन करते करते एक तरीके से जो हमारा कोलैबोरेशन कोऑपरेशन था इंटरनेशनल वर्ल्ड में उसको लूज करते, और किस तरीके से हमें एक बैलेंस बनाना चाहिए अपने डोमेस्टिक विशेस या फिर डोमेस्टिक जिसको कह सकते हैं एस्पिरेशंस और ग्लोबल जो हमारा स्टैंड है उसके बीच में. And then fourth is honorable judges. This basically, please consider this is from the Indian Express. Basically, this talks about the fact that what has been the role of judiciary and judges so far, and how active has it been in eradicating the various social issues that we are facing. And fifthly, we'll be discussing about the news in flash column, which is LawSeco's own initiative, wherein we will talk about the small and crisp news pointers that are specifically important for a prelims exam. Now, before we begin, let's have a quick view at the LawSeco courses that we have for you. We have the Lord of the courses, which is the Judiciary Test Prep course. So we have a very, very exhaustive and nicely drafted course that suffices the judicial aspirants. We have here free study material on the landing page. You can go and download it for yourself. We have various other courses. You can look into them. Now, this is the MCQ for the day. And अभी start करने से पहले एक बात I would like to share with all of you. We have been receiving this feedback that maybe while explaining I run a bit to say a bit faster. So इसीलिए I'll try and emphasize on the fact कि मैं थोड़ा सा slowly explain करूँ. And still, if you genuinely feel that आपको थोड़ी problem हो रही है pace up करने में, catch up करने में, please feel free to write down your valuable feedback in the comment section. We will definitely work upon that. And further, if there is any other suggestion or feedback that you have for us or regarding this news analysis, that can also be very easily written down in the comment section. We would really appreciate that. And thank you for that. And now let's start with the MCQ for the day. Hornbills are found majorly in which state of India? First, West Bengal. Second, Odisha. Third, Arunachal Pradesh. Or fourth, Himachal Pradesh. Now here, another thing that needs to be noted in the question is that we have to tell that hornbills are found majorly in which state. So basically, ऐसा नहीं है कि they are very much confined to a particular single state, but yes, their population is major in one particular state. तो आपको उसका नाम लिखना है. Then we have the descriptive question here. Self-reliance for India should not mean distancing itself from other nations. Rather, it means to be able to be sovereign and independent in its global decisions discussed. The answer to this has to be written within a word limit of 250 to 300 words. And the answer to this question can be very easily written down once we have completed the topic which we have, one of the topics that we have for today.
With this, let's quickly start with the discussion of our first article, which talks about the Draft Environmental Impact Assessment or the EIA 2020 rules. Let's see that why is it news first of all. The draft EIA 2020 has received severe criticism from environmentalists and opposition parties. तो अभी क्या हुआ है कि बेसिकली पहले हम ये देख लेते हैं कि EIA होता क्या है. So basically environmental impact assessment नाम ही अपने आप सजेस्ट कर रहा है कि एक्चुअल में इन रूल्स का काम क्या होता है. सो किसी भी एक्टिविटी का एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उसका असेसमेंट किया जाता है और जिन रूल्स के अंडर ये किया जाता है दीज आर कॉल्ड एज द EIA और द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स. तो अभी क्या होता था कि इंडिया में जो हम EIA रूल्स फॉलो करते थे उनको अभी 2020 में बहुत ड्रास्टिकली उनको अमेंड करने की कोशिश की गई है और अभी करेंटली ड्राफ्ट EIA जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन में है. सो बेसिकली जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट्स हैं और जो बाकी सोशल एक्टिविस्ट्स हैं उनका कहना है कि जो अब नए ड्राफ्ट EIA 2020 आए हैं वो बेसिकली जो पर्पस था जिसका जो पर्पस था हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का या फिर जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट से ज्यादा जुड़ी हुई होती हैं या फिर इस तरह की कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से ज्यादा हैम्पर होती है तो उनको सेफगार्ड करने का जो पर्पस था वो एक्चुअली अब डिफीट हो गया है और ये जो EIA रूल्स 2020 हैं ये इसको प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं कर रहे हैं. सो बेसिकली इसीलिए ये बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में है इस टाइम. अब हमारे लिए पहली बात तो ये भी जानना जरूरी है कि क्यों किन रीजन से हम जो नए वाले हमारे EIA के रूल्स हैं 2020 वाले उनको हम क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं. सो लेट्स सी दैट व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद द ड्राफ्ट. बेसिकली हम ये अपने पिछले न्यूज एनालिसिस में भी कवर कर चुके हैं बट क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है जो मिस सोनिया गांधी ने बहुत अच्छे से इसको एक तरीके से प्रैक्टिकल एसेंस में डाला है उसके लिए हमें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इरोजन ऑफ द फ्रेमवर्क. India featured at the bottom of Global Environmental Performance Index report and that was 117th rank out of 180. As I have already mentioned in our previous lessons as well, that in such cases, it is very important आप इस तरीके के फैक्ट्स को हमेशा नोट डाउन किया करें और कोई भी टॉपिक हो टॉपिक वाइज उस फैक्ट को आप सेग्रीगेट करके अपनी नोटबुक में या कोई भी एक सेपरेट कॉपी आप बना लें जिसमें आप स्पेशली फैक्ट्स लिखें. ये फैक्ट्स बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकते हैं ना ही सिर्फ प्रीलिम्स का बल्कि जब कोई क्वेश्चन आता है आपके मेंस में या फिर एसए में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है बिकॉज ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी वेरी सीवियर इशू दैट वी आर डीलिंग विद करेंटली. तो ये फैक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा सब्सटेंस और एडिशन वैल्यू एडिशन करते हैं आपके आंसर में. So basically, India has featured at the bottom of the Global Environmental Performance Index, which is 177th out of 180 countries, which is definitely very poor. Government approved clearances without proper public consultations, and definitely जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा harm public को भी और environment को पहुंचा है. And this draft gives ex post facto approvals to polluters. इसका मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बेसिकली क्या होता था कि जो लॉ आप जो अभी आप कर रहे हैं उसका एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. सो बेसिकली अब क्या है कि अगर कोई पोल्यूटर है या कोई वायलेटर है जिसने इन्वायरमेंटल लॉ को वायलेट करा है या करने की कोशिश की है तो पहले इस तरह का कुछ भी अलाउ नहीं होता था कि पोल्यूशन करने के बाद या वायलेशन करने के बाद वो थ्रू फाइन्स उसको जो है कॉम्पनसेट कर सकता था. बट अब क्या है कि आपने अगर कोई गलती करी है इट्स ओके यू जस्ट हैव टू नाउ पे अ फाइन एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड. नाउ जस्ट इमेजिन एक करोड़ों करोड़ों का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कोई प्रोजेक्ट है तो उसको कुछ 1-2 करोड़ अगर वो फाइन में दे भी देगा तो हाउ मच विल इट रियली इम्पैक्ट इट. उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि उसके लिए बहुत इजी है. सो इट विल बी जस्ट लाइक वन और द अदर इन्वेस्टमेंट्स दैट ही इज मेकिंग. सो ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल मिला है पोल्यूटर्स को ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. Then opaque reviews. In 2014 TSR Subramaniam Committee, so this committee also should be kept in mind that it is related to which of the topics. It was set up to review 6 major environmental laws which were actually never released. And then 2018 CRZ, these are the Coastal Regulation Zones notification. Basically, जो CRZ notification या CRZ rules होते हैं, so वो उन areas को protect करने के लिए होते हैं जो इंडिया की coastline है. So India has a very large coastline of approximately 7,000 kilometers. So उस coastline को protect करने के लिए क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा biodiversity और बहुत इन्वायरमेंटली सेंसिटिव जोन्स होती हैं. सो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो नोटिफिकेशन या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज होते हैं उनको हम CRZ लॉज या रूल्स या फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स कहते हैं.
So in 2018, CRZ notification was rejected by the stakeholders for threatening livelihood. And according to this is a very nice journal जो environment के बारे में बात करता है, the Lancet. So according to it, 12.5% of all deaths in India should be attributed to air pollution. Now here we can understand the severity कि कितना severe pollution है वो भी इंडिया के context में. देन अफेक्ट्स ऑन आदिवासी, जैसा हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में बात की थी कि जो इफेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं वो किसी भी फॉरेस्ट एरिया के सबसे क्लोज विसिनिटी में होती हैं. तो अगर आपको कोई डैम कंस्ट्रक्ट करना है, आपको कोई फॉरेस्ट में आपको मतलब लॉगिंग करनी है, यानी कि आपको फॉरेस्ट कटवाना है, उसको प्लांटेशन में कन्वर्ट करना है, या वहाँ आपको कोई फैक्ट्री या माइनिंग और सेटअप करनी है, आपको कुछ भी ज्यादा इन्वायरमेंट से क्लोज एक्टिविटी अगर आपको इस्टेब्लिश करनी है, तो जिन लोगों पे इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आता है, सी पीपल एट लार्ज पे तो आता ही आता है, विच इज लाइक यू कैन नॉट रियली डिनाई दैट. लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है वो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज पे आता है, वहाँ की आदिवासी कम्युनिटीज पे आता है. एंड हियर द आदिवासी एंड फॉरेस्ट dwellers are being harassed by forest department, and this disempowers the Adivasis, forest dwellers and Gram Sabha. So basically Forest Rights Act, it was passed in the year 2005 just to make sure that कोई भी इस तरीके के आदिवासी ग्रुप्स या ट्राइबल ग्रुप्स, उनके साथ कोई भी जिसको कह सकते हैं मिस कम्युनिकेशन ना हो, मिस बिहेवियर ना हो. बट अगर जो हमारा EIA रूल्स है वो ही इसको फर्दर जिसको कहते हैं कि एम्पावर नहीं करेंगे या फर्दर उनको सेफगार्ड नहीं करेंगे, सो ऑब्वियसली दिस विल बी ऑफ नो यूज. देन public health. To support capitalist, international and domestic obligations are being ignored, and including the social obligation, and definitely that should not be the case. And then further, India also is a signatory of the Sustainable Development Goals. So as we know that United Nations General Assembly, उन्होंने 17 Sustainable Development Goals sign किए थे. उनमें से goal number 3, 6, 15 and 14, they deal directly with the environment. Third is good health and well-being. 6th, clean water and sanitation. 14th, life below water, and 15th, life on land. So obviously अगर हम अपने EIA rules पे ही ध्यान नहीं देंगे तो we will definitely fall short in achieving these SDGs as well, which cannot be the real case. Now let's see that what can be the solution. Shift of mindset from clearances to compliance and follow green norms. Yes, of course, क्योंकि हमें ये mindset लोगों में develop करने की कोशिश करनी चाहिए कि फाइन भरने से ज्यादा आसान एक्चुअल में कंप्लायंस है. यानी कि फाइन भरना फिर भी मुश्किल है, और अगर आप सच में कंप्लाई करते हो अच्छे रूल्स के साथ तो आप बेटर पोजीशन में हो. अभी क्या है लोगों को के दिमाग में कि अगर हमने रूल्स माने तो हमें काफी नुकसान झेलना पड़ेगा इकोनॉमिक टर्म्स में, बट अगर हम फाइन भरते हैं, कुछ गलत करते भी हैं, पल्यूट करते भी हैं, तो फाइन भर देंगे एंड वील स्टिल बी एट इन अ बेनिफिशियल सिचुएशन. सो ये इसको हमें प्रैक्टिकली भी चेंज करना चाहिए और मॉरली भी हमें उनके दिमाग में सेटअप चेंज करना चाहिए. एंड वी शुड विड्रॉ ड्राफ्ट EIA 2020. So basically that is the biggest solution that we can go for now according to the author. और अगर आइडियल सिचुएशन में देखें कि अगर हम पूरा भी इसको विड्रॉ नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली जिन चीजों से ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉज हो रही है इन पे जरूर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज पब्लिक पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स लाइक एनवायरमेंट. और इसीलिए जो पब्लिक ओपिनियन है उसको अटमोस्ट इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए. विद दिस, let's discuss about the second article for the day, which talks about vaccine and vaccination. Let's see, it says that as the whole world is waiting for a vaccine, putting in place an innovative delivery system is a must. As we just discussed in the introductory slides, that though we are definitely restlessly waiting for a vaccine, हमसे इंतजार भी सच में नहीं हो रहा, because we know कि वो ही एक ऐसा solution है जो हमें इस पूरे पैंडेमिक से बाहर निकाल सकता है. बट हमें इस बात के लिए भी तो श्योर होना चाहिए कि जब वो सोल्यूशन हमारे पास एक्चुअली आ जाएगा, क्या हम उस सोल्यूशन को सही लोगों तक, जो उसके एक्चुअल जिन लोगों की उसकी जरूरत है, उन तक पहुंचाने के लिए हम वेल इक्विप्ड और रेडी है भी या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई रेफ्यूजी कैंप है या कोई भी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आ गया है, तो अब जो वहाँ की अथॉरिटी थी उसको हर तरीके का असिस्टेंस तो मिल गया है. बी इट क्लीन वाटर, फर्स्ट एड हो सकता है, फूड हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, कुछ भी इस तरीके का असिस्टेंस तो मिल गया. बट उस अथॉरिटी को अब यही नहीं पता था कि हमें किनको ये सारी जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और अगर पता चल भी जाता है कि किनको करनी है तो कैसे करनी है. So you imagine by yourself
कि कितना ज्यादा कितना इसका इम्पैक्ट होगा फाइनली। डेफिनेटली सारा कुछ वेस्ट हो जाएगा, सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा, और जिसके लिए इतना सारे रिसोर्सेज इकट्ठी की गई थी उनको कभी बेनिफिट इसका मिलेगा ही नहीं। सिमिलर इज द केस विद द वैक्सीन ऑफ कोविड-19 एज वेल, कि एक जगह जहां हमारी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है इस एक प्रॉपर वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, दूसरी साइड जो हमारी अथॉरिटीज हैं या फिर जो हमारी जिसको कहते हैं ना हम, जो हमारे सर्विस डिलीवरी सिस्टम्स जो हैं, ठीक है, अब चाहे वो हमारे लोकल लेवल हो, स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल हो, थ्रू वेरियस स्कीम्स, वेरियस बॉडीज, वेरियस इंस्टीट्यूशंस, वेरियस पैनल्स एक्सेट्रा, they should also be well trained and secondly equipped and acknowledged that how and in what way do we have to distribute these vaccines. मोस्टली यही है। अब अभी हम इसको सबसे मेन जो पार्ट है कि कर कैसे सकते हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी नो दैट amidst the innumerable trials, two Indian candidates have advanced considerably. So one of them is the Serum Institute of India and other is the Bharat Institute, which is from Hyderabad and one is from Pune. Well that अभी हमारे लिए वो इतना significant नहीं है, but ये है कि India is participating very actively in this thing. Then vaccine nationalism, public is good is being attempted to hijack by wealthy nations. अब क्या हो रहा है कि जैसे हमें पता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका जो वहाँ की एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल या ड्रग कंपनी है, तो वो एक वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, एंड होपफुली अगर वो सक्सेसफुल होती है तो इट विल बी प्रोबेबली द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन इन टैकलिंग कोविड-19। तो ऑलरेडी जो कई सारे रिच नेशंस हैं वो एक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम को कि सबसे पहले वैक्सीन जो है वो वहां सप्लाई की जाए। नाउ दिस सीम्स सो अनजस्ट। ये सेम वही बात हो गई जब हम कहते हैं कि कोई भी रिसोर्सेज रिच को ज्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं एंड द पुअर हैव टू ऑलवेज वेट एंड स्ट्रगल फॉर दैट। सिमिलर इज द केस एट द ग्लोबल लेवल एज वेल, कि अगर जो रिच नेशंस हैं वो इजीली सारी वैक्सीन या फिर जो स्टार्टिंग में वैक्सीन बनी है उनको वो सारे कंज्यूम कर लेंगे, तो जो पुअरर नेशंस हैं जिनकी ना तो इतनी आउटरीच है और ना इतनी कैपेसिटी है टू एक्चुअली बाय सच एक्सपेंसिव और सच वैक्सीन, उनके बारे में अगर हम सोचे तो उनका क्या होगा। इसीलिए इट इज सेड कि यहाँ पे पूरा इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए और जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पे इसको ज्यादा फोकस के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। Now, they are talking about that how the delivery of vaccines or vaccination can be done. Unlike the universal immunization program, COVID-19 vaccine needs innovation, definitely. Second, government needs to define a policy to, first, सेव टाइम एंड कंसिडर दोज एट हाई रिस्क। यस, तो सबसे पहले तो टाइम बचाइए और दूसरा आप एक लिस्ट बनाइए कि किसको प्रायोरिटी लिस्ट, जिसको हम कहते हैं कि भाई सबसे पहले जो हमारे ओल्ड एज पीपल हैं उनको मिलनी चाहिए, या फिर जिनको और मल्टीपल मॉर्बिडिटीज हैं, जैसे किसी को अगर ऑलरेडी कैंसर है या फिर उसको शुगर है या कोई हार्ट एलिमेंट है तो डेफिनेटली वो ज्यादा रिस्क पे है। देन उसके बाद कोई ऐसे लोग जो जैसे बच्चे हैं या कुछ, तो आपको डिजीज के नेचर के अकॉर्डिंग एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए। Then create records of the already infected and recovered people, because जो recovered people है उनके comparatively chances कम है कि उनको दोबारा COVID-19 हो, but of course वो हो सकता है, and लेकिन ये है कि अगर उनको भी वैक्सीनेशन मिल जाए तो it is also not such big a harm. Protect those who must rebuild essential activities, जैसे कि community need के according, जैसे हमारे जो front liners हैं जैसे पुलिस और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी सबसे पहले प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, because obviously they are at the front line. Then options that we have are the camps and vaccination by appointments. जैसे हम बहुत सारे वैक्सीनेशन के कैंप्स हम अभी भी लगाते हैं, पोलियो के या कुछ लगाते थे until India had become a polio free nation. तो इस तरह से हम इस तरह के steps जो हैं ले सकते हैं. Now let's discuss about the next article which talks about self-reliant foreign policy of India. Let's see that why is it in news. Self-reliance is the theme of India's 74th Independence Day. Now, as we know that we are aiming and striving to become Atmanirbhar Bharat, and this is the theme of our 74th Independence Day. To reduce dependence on imports and encourage domestic goals, foreign policy is critical. See, अभी क्या है कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है उसको कई जगह पे और कई बार इस तरह से हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अगर हम आत्मनिर्भर हैं तो इट मीन्स कि हम किसी पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। अब किसी पे टेक्निकली बिल्कुल भी निर्भर या रिलायंट ना होने का मतलब ये है कि आपको किसी से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, या आपको किसी से बात करने की या कोई ग्लोबल कोऑपरेशन बनाने की जरूरत नहीं है, या आपको किसी से कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बट वी शुड थिंक अबाउट इट. Does this really mean to be self-reliant? No, not at all.
बेसिकली सेल्फ रिलायंस मीन्स कि आप केपेबल हैं अपने आप को, अपनी ज़रूरतों को, और आपके जो सिटीजन्स हैं, आपके जो लोग हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी एस्पिरेशंस हैं ना, बी इट इकोनॉमिकल, साइंटिफिक, इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, और टू से और एनी काइंड ऑफ नीड्स, आप उनको फुलफिल करने के लिए सक्षम हैं. बट ऑब्वियसली देयर कैन नेवर बी अ नेशन इन दिस होल वर्ल्ड जो पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट हो, because there has been a distribution of resources, of the natural resources in a certain way. बहुत सारी चीजें हैं जो naturally आपके पास नहीं है. Like for example, इंडिया में पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं है ड्यू टू इट्स जोग्राफिकल लोकेशन. अब हम कहें कि सेल्फ रिलायंस में हमें किसी भी तरीके से इसको प्रोड्यूस करना होगा, एंड अगर हम कर भी लेते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो एक्चुअल में इम्पोर्ट की कॉस्ट से भी ज्यादा पड़ रही है. सो we can simply make sense out of it कि कितना sensible ये होगा और कितना नहीं. So basically यहाँ पे बहुत it's a beautiful article. Go through this article because here the author says कि self reliance का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो और ग्लोबल पावर्स हैं या और नेशंस हैं इस दुनिया में, आप उनके साथ में पूरी तरह डिस्टेंस कर दो और आप उनके साथ कोई अग्रीमेंट, कोई ट्रेड, कोई रिलेशंस ना रखो. दैट इज प्रोटेक्शनिज्म. दैट इज एक तरीके से आप अपने आप को बॉक्स कर रहे हो, बंद कर रहे हो अपने आप को. आप रादर सेल्फ रिलायंस का मतलब ये होता है कि आप सेल्फ इक्विप्ड हो, आप इतने सक्षम हो, इतने रिलायंट हो, इतने केपेबल हो कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो किसी चीज से इम्पैक्ट लिए बिना. अब यहाँ पे कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं इस बात के, जब उन्होंने कहा है कि इंडिया प्राइड्स इटसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्री. तो हमने जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी, तो हालांकि जो पंडित नेहरू हैं, ही वाज द बिगेस्ट टू से द फेस आफ्टर बिफोर द नैम, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, उसके सबसे बड़े, जिसको कह सकते हैं टॉर्च बेयरर, पंडित नेहरू थे. बट स्टिल if it was in the favor of nation, we took help from United States. So this is a kind of wise decision. तो ऐसा नहीं है कि हम सोवरीन हैं तो हम किसी से बात कर ही नहीं सकते. इनफैक्ट आप सोवरीन हो तो आप और इंडिपेंडेंटली किसी से बात कर सकते हो. That is the idea of being sovereign and independent. Then another example they've given is during the Indo-Pak War of 1971, जब इंदिरा गांधी ने साइन की थी ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद रशिया, और रशिया ने फिर काफी हेल्प करी थी टू mitigate the impact of Pakistan in India. And finally, in 1999 Kargil war, India welcomed direct intervention of US, जब उन्होंने बहुत हेल्प करी थी जो भी मतलब सारा टर्मोइल चल रहा था from the side of Pakistan, तो US ने उसको बहुत significantly curb down कर दिया था. So for all the above, India didn't lose its autonomy or its sovereignty, but secured its freedom and sovereignty and integrity. So यहाँ पे ये बहुत ही thin difference है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्या सेल्फ रिलायंस है और क्या एक्चुअली प्रोटेक्शनिज्म है. इंडिया वांट्स टू बी सेल्फ रिलायंट, वी वांट टू कोऑपरेट ग्लोबली बट ऑन आवर ओन टर्म्स. जस्ट एज अ वेरी रिसेंट एग्जांपल, जो हमारा RCEP था, व्हिच वाज द रीजनल, इट वॉज द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें इंडिया को भी पार्टनर बनना था. सो 10 आसियान नेशंस और उसके अलावा 6 नेशंस होने थे इंक्लूडिंग इंडिया. बट नाउ इंडिया हैज स्टेप्ड आउट ऑफ इट, क्योंकि जो इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशंस थे ऑन दैट प्लेटफॉर्म, वो और देश नहीं मान रहे थे, एंड दैट वाज द सोवरेन डिसीजन दैट वी वर एबल टू टेक, एंड वी स्टेप्ड आउट ऑफ इट. तो हमने जबरदस्ती उसका पार्टनर हम नहीं बने, एंड वी टुक आवर ग्लोबली आवर ओन सोवरेन डिसीजन. सो दैट इज बीइंग सेल्फ रिलायंट. Now then, self-reliance means that India should balance seeking support from US and maintain its economy autonomy. So अभी क्या है, क्योंकि अभी US और इंडिया का एक तरीके से जब जो कोल्ड वॉर चल रहा है, तो it is expected out of India कि India should choose either China or USA. But the question is why? Why does India have to make a choice? इंडिया इज अ सोवरेन इंडिपेंडेंट नेशन. वो अपने अलग तरीके से अपना प्रॉपर ट्रांजैक्शंस ग्लोबल लेवल पे कर सकता है. इट really doesn't have to choose either between China or USA. It can definitely make a choice कि उसे किस टाइप के और किन सेक्टर्स में ट्रेड चाइना के साथ करना है और किस टाइप का ट्रेड उसे यूएस के साथ करना है. सो बेसिकली इट डज नॉट रियली हैव टू चूज, जैसा लोगों को लग रहा है कि इंडिया शुड चूज और इंडिया इज चूजिंग यूएसए ओवर चाइना और समथिंग लाइक दैट. दिस शुड नॉट बी द केस. Then diversification is an essence, because that is the essence of diplomacy, that आपका links सब nations के साथ अच्छे होने चाहिए. Like obviously there can be a chances like India, Pakistan or so, but हाँ उसको भी हमें अच्छा करने के लिए strive करना चाहिए. But all together इसी को multipolar world कहते हैं, जहाँ पे आप diversify कर सकते हो अपने global relations को.
And then India must reconfigure autonomy power with other to accomplish joint goals. So that actually is one of the goals and agenda also that India has chosen after becoming the non-permanent member of the United Nations Security Council this year. Now, finally, let's discuss the fourth article, which talks about constitution and the court. So, as a part of the wider degradation of Indian democracy, the growing lack of faith in the functioning of the Supreme Court of India is a concern, because definitely जितने ज़्यादा इस तरह के extra judicial activities, for example, mob lynching या कुछ हमारे सामने आ रहे हैं, तो ये देखने मिल रहा है कि लोगों का जो फेथ था जुडिशरी में या जुडिशियल सिस्टम में, वो फेड अवे होता जा रहा है, which is a big reason to be worried about. So, what are the reasons of the growing lack of faith? First, the court refused to strike down laws like UAPA. So, abhi last year only the laws, the new act of UAPA, which was the Unlawful Activities Prevention Act, जिसके अकॉर्डिंग अभी किसी इंडिविजुअल को भी हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसके कई सारे बहुत सारे जो फीचर्स थे वो बहुत ज्यादा टू से ड्रास्टिक है और वायलेटिव है फंडामेंटल राइट्स के. बट अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया है, एंड इट मे बी कंसिडर्ड दैट इट इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द पार्ट 3, एंड इसलिए जुडिशियल रिव्यू के अंदर इसको स्ट्राइक डाउन हो जाना चाहिए था. But the court has still taken no cognizance of it. Second, unconscionable delay in hearing major cases, example election funding and CAA. Now we know कि जो election funding यानी जो भी electoral bonds का जो issue rise हुआ था कि कोई भी individual किसी भी political party को पैसे donate कर सकता है by means of electoral bonds. मतलब एक तरीके के ये एक instrument होते हैं. Bonds simply क्या होते हैं, ये एक exchange के instruments होते हैं, ये मनी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि आप कुछ पैसा देते हो, उसके बदले में आपको बॉन्ड्स यानी गारंटी मिलती है फ्रॉम दैट पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट. तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल था क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं था, पता ही नहीं चलेगा कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया है. सो इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन राइज हो रहे थे, बट अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई कॉग्निजेंस खास नहीं लिया है. एंड ऑफ कोर्स द वेरी वर्ल्ड फेमस द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वी ऑल नो अबाउट. Then a denial of basic human rights to the children and students of Kashmir after the internet shutdown and Article 370 was abrogated last year. Failure to check authoritarianism and sectarian bigotry. Acceptance of legislative or executive post immediately after retirement, because we know that very recently Ranjan Gogoi also has been nominated as one of the members of Rajya Sabha. तो ये तरीके से कहते हैं कि ये थोड़ी सैंक्टिटी को क्वेश्चन करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर. Then became an institution that speaks language of the executive, like as it was said by Gautam Bhatia, let down through a combination of avoidance, mendacity and a lack of zeal on behalf of political liberty. So basically बहुत सारे points हैं जो बताया गया कि किस तरीके से जो हमारी judiciary है वो active नहीं है, और it should actually pull up its socks. So the way forward can be that hope for the revival of the court's autonomy and independence, just like in 1980s and 1990s. So after the period of emergency, जो एक बहुत bright और leadership का role play किया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, उसी तरीके से उसे अब भी एक unbiased तरीके से अपना role pick up करना चाहिए. Now finally, let's see that what do we have for news in flash today. Kamala Harris, which is Kamala Devi Harris, to be Biden's running mate. Now as we know कि नवंबर में 2020 में ही अमेरिका में presidential elections होने वाले हैं, तो उसके एक बहुत potential candidate जो बाइडन है. So जो बाइडन ने अपनी nominate किया है कमला हैरिस को. she originally hails from India, so originality इनकी Indian nationalism में है, और उन्होंने उनको vice president के लिए choose किया है. So US Senator from California, Kay Harris, has been named the running mate for the vice president of Democratic presidential nominee Joe Biden. Then Mega Labs, the Council for Scientific and Industrial Research, has started working on developing mega labs to ramp up testing of COVID-19 and improve accuracy. So these labs will have next generation sequencing machines to sequence 15,000 to 3,000 viral genomes to a go. Basically जो ये NGS techniques होती है, machines होती है, वो क्या करती है कि इस वायरस की पूरी सिस्टम को स्टडी करती है और ये बताती है कि जो SARS यानी कि COVID-2 है, यानी कि जो COVID-19 करंटली है, वो अपने प्रीवियस जो इसके प्रीडिसेसर्स थे उनसे किस तरह अलग है, और हम फिर इसलिए उसको कैसे टैकल कर सकते हैं. एंड फाइनली, थ्रेट टू हॉर्नबिल्स. नाउ हियर यू माइट हैव योर आंसर. A study by Chintan Seth and others has flagged that a high rate of deforestation in major hornbill habitat in Arunachal Pradesh has occurred. क्योंकि ये क्या है कि जो हॉर्नबिल्स होते हैं वो ऊंचे पेड़ों पे अपना घोंसला बनाते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं, बट डिफॉरेस्टेशन की वजह से अब उनको एक प्रॉपर हैबिटेट नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे वो एक्चुअल में नेस्ट अप कर सकते हैं. So this was all for today. Do give it a like if you like it. So basically it's just that we will understand that our audience is really being benefited by our news analysis. So if you like it, just give it a thumbs up and stay tuned with Law Seekho for
such amazing updates. We keep on coming with almost every day with something new and better. So yeah, thank you so much.